Hello and welcome to mentalhealth.now. 2020 is finally ending and we cannot wait. बहुत कुछ हुआ इस साल. काफी बातें जो हम याद भी नहीं करना चाहते और कुछ ऐसी चीजें जो बहुत कुछ सिखा कर गई हमें. आई एम श्योर कि हर किसी ने अपने बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा, अच्छा और बुरा दोनों. कुछ लोगों ने कोशिश की होगी कि कुछ अच्छी हैबिट्स लगाएं और कुछ सिर्फ सोए होंगे. सबका अपना अलग अलग तरीका है कोप करने का. I hope you were not too hard on yourself if you were not able to do something or achieve something this year. It is okay. आप अकेले नहीं हैं. अब जब मैं न्यू ईयर की बात कर रही हूँ तो हम सबकी सबसे फेवरेट चीज़ है रेजोल्यूशंस बनाना. हर साल के स्टार्टिंग में हम रेजोल्यूशंस बनाना शुरू हो जाते हैं. सिंस दिस ईयर वाज सो डिफरेंट, लेट्स जस्ट हैव अ रिव्यू कि हम यूजुअली क्या रेजोल्यूशंस बनाते हैं. देन विल कम टू 21. हम कुछ गोल सेट करते हैं. हमें पढ़ाई ज़्यादा करनी है या वी वांट टू डू डाइटिंग. सुबह ज़रूर जल्दी उठेंगे इस बार से. एक्सरसाइज करेंगे. वील वर्क हार्डर टू गेट प्रमोशंस और अचीव आवर एम्स. And yes, meditation or breathing or something just healthy for us, for ourselves. So, since this year was so different, I was curious कि बाकी लोग क्या resolutions बनाएंगे 21 के लिए. तो हमने काफी लोगों से ये सवाल पूछा, जिनमें से कुछ हम आपको आगे दिखाएंगे. सो वी आस्क्ड देम दैट काफी रेजोल्यूशंस बनाए होंगे उन्होंने बीते सालों में, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. क्या कभी उनको रेजोल्यूशन बनाने का प्रेशर फील हुआ. एंड दैट कंसिडरिंग कि कोविड सिचुएशन रही है 2020 में, तो 21 के लिए उन्होंने क्या रेजोल्यूशन सोचे. सो लेट्स हियर सम ऑफ दोज रिस्पॉन्सेस. For the last 15 years or so, I've been making resolution to strive more and more than the previous year and making really ambitious plans to achieve them. But 2020 has taught me that plans always don't work out the way we want it to, and we already have enough to lead a happy life. So this time I've decided to not make any plans for this coming years beforehand and embrace whatever comes my way. तो व्हेन इट कम्स टू मेकिंग रेजोल्यूशंस यार मैंने काफ़ी रेजोल्यूशंस बनाए हैं, लेकिन उनमें से मेजॉरिटी टाइम्स कोई से भी पूरे नहीं हुए हैं. लेकिन मेरे को एक रेजोल्यूशन मेरा क्लियरली याद है विच आई कंप्लीटेड वाज टू लर्न अ न्यू सॉफ्टवेयर. एंड व्हेन इट कम्स टू द रेजोल्यूशन फॉर 2021, मैं बस इतना ले रहा हूँ कि क्योंकि 2020 में पूरा पैंडमिक चला उसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेज़ी हो गया हूँ. तो अब मेरे को नेक्स्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है एंड आई हैव टू कंप्लीट माई एम. Yes, so last year I have made resolution as in to eat healthy, being fit, and hitting the gym daily. These sort of resolutions I've had in my mind, but couldn't succeed like properly. Um, pressure, no, pressure nahi tha, but I wanted to go consistently, but yes, I just couldn't complete it. But yes, I haven't felt the pressure of it over the entire year. No. This time post COVID, I think my top priority or my resolution would be to take care of yourself. So I've realized a resolution that comes from within is actually followed. A New Year resolution for 2021 is to imbibe new experiences, have new learnings, and welcome this year by facilitating and helping people deal with pandemic in new and innovative ways. I made many resolutions in the past years, but I couldn't complete them. So while making the resolutions, मेरे को थोड़ा सा pressure feel हुआ था. Considering the COVID situation, uh, my resolutions for 2021 are that I need to be like more productive. Basically, I'm someone who do not believe in resolutions. I have only kept a resolution 1 year, that was 2016, where I kept a resolution that I will work on myself to be a better person. I have not really thought of any resolution. I will just say that I'll focus on my career. हर साल की तरह 2020 के लिए भी मेरे काफ़ी रेजोल्यूशंस थे. बट वो कहते हैं ना, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन. सो कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं. बट वन थिंग I must say, this 2020 or this pandemic made me realize
कि यू नो थोड़ा रुक जाओ, ब्रेक, break is essential. And so I will be continuing that resolutions in 2021, that I will be taking care of my physical and mental health. I will be taking care of my near ones, and yes, I will always be grateful. मेरे ज़्यादातर रेजोल्यूशंस फेल करते थे बिकॉज इट वुड काइंड ऑफ बर्डन मी, इट वुड प्रेशराइज मी टू मीट सम आइडियल स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल एन आइडियल बॉडी वेट और एन आइडियल हेयर लेंथ और एन आइडियल नेल साइज़. पर इन सब से हटकर मैंने 2021 के लिए एक रेजोल्यूशन लिया है, एंड माई रेजोल्यूशन इज़ टू पुट नो प्रेशर्स ऑन माई सेल्फ एंड एक्सप्लोर द रियल मी. सो दैट्स माई रेजोल्यूशन, टू एक्सप्लोर द रियल मी. हर किसी ने रेजोल्यूशंस बनाए हैं कहीं ना कहीं, ना कहते कहते भी. हाउ अबाउट वी डू अवे विद द रेजोल्यूशंस? इस साल रेजोल्यूशंस नहीं बनाते, लेट्स जस्ट स्टॉप एंड बी. इस बार कुछ और करें. आई हैव अ स्मॉल चैलेंज फॉर यू. न्यू ईयर चैलेंज भी कह सकते हैं आप. अब इस चैलेंज में क्या है, 3 चीज़ें हैं. ओके, द फर्स्ट इज माइंडफुलनेस, कि आप उस मोमेंट में रहें, जो भी जैसी भी मोमेंट आने वाली है उस मोमेंट में रहे एंड बी प्रेजेंट. ना पीछे जाएं ना आगे जाएं, एंड यू वुड रियलाइज कि बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट will help you reduce your stress, reduce your anxiety and make you more focused and concentrated. हम already mindfulness की बात कर चुके हैं एक बार. If you want, you can go and check out that video also. The second thing in this challenge is gratitude, being thankful. किसी भी चीज़ के लिए, कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी हो, अगर आप थैंकफुल फील करेंगे कि थैंक गॉड आई हैव दिस थिंग, और थैंक समबडी और समवन हु डिड समथिंग फॉर यू, हाउएवर स्मॉल. लाइक अगर कोई पानी का ग्लास भी लिया है, या द थिंग्स दैट यू आर एबल टू डू दैट यू टेक फॉर ग्रांटेड, लाइक मूव कर पाना, देख पाना, बोल पाना, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी थैंकफुल होना इज़ अ लॉट, एंड इट्स गोइंग टू हैव अ ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू वंस यू स्टार्ट डूइंग इट. एंड द थर्ड इज़ पॉजिटिव एफर्मेशंस. इसकी बात हम आने वाली वीडियोस में भी करेंगे, बट पॉजिटिव एफर्मेशंस आर नथिंग बट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आप खुद को कहते हो, खुद के लिए कहते हो. हमें लगता है कि हमें ये नहीं आता या हम उस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, मतलब हमारा फोकस नेगेटिव्स में या वीकनेसेस में ही ज़्यादा रहता है. कंडीशनिंग है एक तरीके से, हमने यही सीखा है. तो इसको हम कर सकते हैं चेंज. हम अपना सेल्फ एस्टीम, अपना सेल्फ वर्थ, अपने बारे में जो हमारे विचार हैं वो बदल सकते हैं, उसको और पॉजिटिव कर सकते हैं. तो अभी के लिए मैं आपको कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ या पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी दैट यू कैन यूज़. सो आई कैन अकम्प्लिश एनीथिंग. I am capable of loving myself. I love every part of my body. I am resilient and filled with strength. I am proud of myself. I am capable of so much. I am worthy of love and respect. I can get through anything. I can accomplish anything. ये कुछ स्टेटमेंट्स है जो आपको लगेगा बहुत सिंपल है, बट अगर आप रोज सुबह उठकर इनको पढ़ेंगे, यू विल रियली नोटिस अ चेंज. आपके माइंड में आपकी अपनी खुद की छवि बदलने लगेगी. एंड येस, इट वर्क्स. सो माइंडफुलनेस, ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस, ये है मेरा न्यू ईयर चैलेंज. रेजोल्यूशंस की जगह ये ऑल्टरनेटिव दे रही हूँ मैं आपको कि एक बार कोशिश करके देखते हैं. इस बार अनड्यू प्रेशर नहीं लेते रेजोल्यूशंस बनाने का, कुछ नया करके देखते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर. Don't forget to like and subscribe our channel. Hit the bell icon to get updates on every time we upload a new video. Stay connected and thank you so much for watching.